Hello students, my name is Hidal Lotia from JMP English Medium School. Kids, I am back with my section number 2 of chapter number 1, Air and Water. Today I am going to explain you about air, composition of air and properties of air. But before I start explaining all the things about these, let me revise you all the things about last session. Last session what we have done? We have done vocabulary words and meanings, right? So let's revise this. So let's begin vocabulary words. Number 1, nitrogen. Nitrogen, nitrogen. Number 2, helium. Helium, helium. Number 3, atmosphere. Atmosphere, atmosphere. Number 4, impurities. Impurities, impurities. Number 5, sedimentation. Sedimentation, sedimentation. Number 6, decantation. Decantation, decantation. Number 7, evaporation. Evaporation, evaporation. Number 8, distillation. Distillation, distillation. Number 9, chlorination. Chlorination. Number 10, screening. Screening. Number 11, soluble. Soluble. Number 12, ozone. Ozone. Number 13, composition. Composition. Number 14, spacecrafts. Spacecrafts. Number 15, pond. Pond. Now meanings. Number 1, filtration. The process of filtering a liquid or gas. कोई भी process होती है जो liquid को और gas को purify करती है, उस process को हम क्या बोलेंगे? Filtration. Number 2, sedimentation. The process of depositing sediment. मतलब कोई भी sediments है वो नीचे deposit बैठ रहा है, तो उस process को हम क्या बोलेंगे? Sedimentation. Number 3, filter. A device containing paper, sand, chemicals and so on that liquid or gas is passed through in order to remove any materials that are not wanted. मतलब filter मतलब कि ऐसी चीज जिसमें पेपर, सैंड, केमिकल की हेल्प से कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिल्टर. नाउ नंबर 4, क्लोरीनेशन. The process of adding chlorine in water to kill germs is called chlorination. मतलब ऐसी चीज जो पानी में डालते हैं तो पानी में से germs मर जाते, किल हो जाते, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Chlorination. Now number 5, water filters. Water filters used to remove harmful bacteria. वाटर में हार्मफुल बैक्टीरियाज भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए we need water filters. Clear kids? So here we completed revision of section 1. Now let's begin today's session. Topic number 1, air. Kids, हम सबको पता है ना air क्या है? Air is a mixture of many gases. मतलब air तो air है, but वो क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे gases का mixture है. क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर. एयर कंटेन्स मैनी गैसेस. मैंने बोला कि बहुत सारे गैसेस को कंटेन करता है. दीज गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. मतलब कि
वो जो मिक्सचर होता है एयर में बहुत सारे गैसेस का, उनमें कौन कौन से टाइप्स के गैसेस होते हैं, तो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मिथाइल है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एयरबोर्न, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर राइट इन एयर, मतलब एयर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। Air also contains water vapor, dust particles and smoke. Even air के अंदर water vapor भी है, dust particles भी है और smoke भी है। Kids, कभी water vapor कैसे पता चलता है कि जब हमारी स्किन में हमें थोड़ा सा मॉइस्चर फील होने लगता है, जैसे कि ड्यू होता है ना एयर, कोई भी चीज में विंटर सीजन में बहुत दिखता है, तो हमारी स्किन में कैसा फील होता है, पसीना पसीना वाला फील होता है, मतलब कि हमारे एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। फिर है डस्ट पार्टिकल्स। किड्स, आप लोगों ने कभी विंडो के सामने सनलाइट हमारे घर पे आती है ना, तब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसमें से पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? पार्टिकल्स जो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर आता है स्मोक। स्मोक भी होता है, स्मोक कभी कभी विजिबल भी होता है राइट, कोई भी धुआं करते हैं या फिर कोई भी स्मोकिंग करता है, तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी एयर के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग। एयर कंटेन्स मैनी गैसेस। These gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other gases, right? Air also contains water vapor, dust particles and smoke. Clear? Now today second topic, composition of air. The approximate percentage of different gases present in air given below. मतलब कि यहाँ पे कितने प्रपोर्शन में कितने टाइप्स के गैस है, हियर आई एम शोइंग द इमेज, आपको दिख रही है ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर हियर इज गिवन ब्लू कलर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा कलर दिया है? ब्लू कलर। आपको दिख रही है ब्लू कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है किड्स? सोचो कि वो इतना सा प्रोपोर्शन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में। About 0.03% of the air is carbon dioxide. एयर में 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट किड्स? 0.03% एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। It is used by green plants to make their own food by the process of photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स करते हैं। कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। दे आर मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेने के लिए। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी वो एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू हो जाती है ताकि वो इजीली अपना खाना बना पाए। क्लियर? नाउ ऑक्सीजन, द कलर ऑफ ऑक्सीजन हियर इज गिवन येलो कलर। येलो कलर इज गिवन फॉर ऑक्सीजन। आपको दिख रहा है? इतना सा है, दिखाई दे रहा है ना किड्स आपको? मतलब कि अबाउट 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। मतलब हमारे एयर में कितना पोर्शन ऑक्सीजन कवर करता है? तो कि अबाउट 21%। कितने परसेंट किड्स? 21% एयर में कौन सा पार्ट है? ऑक्सीजन का है, राइट किड्स? नाउ लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग एज वेल। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कौन यूज करता है? वी ह्यूमन बीइंग्स, राइट? एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स कोई भी है, उसको किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन अगर एयर में नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, राइट किड्स? तो ऑक्सीजन इज द मेन पार्ट ऑफ द एयर। इन द एयर के अंदर का मेन पार्ट कौन सा है? ऑक्सीजन का, बिकॉज ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग थिंग रह ही नहीं पाएगा। क्लियर? और ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है किड्स? 21%। कितने परसेंट? 21%. Now next, nitrogen. About 78% of the air is nitrogen. एयर में 78% जो होते हैं
उसका प्रपोर्शन होता है एयर में 78%। किसका? नाइट्रोजन का। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में शो किया है ना? सबसे हाईएस्ट वाला प्रपोर्शन किसका है? नाइट्रोजन का, 78%। इट इज important for the growth of plants। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कि अगर नाइट्रोजन है तभी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होगी, और नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके यूज में आता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, बट ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन की नेसेसिटी होती है, राइट? अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस होगी, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। सो नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। क्लियर? नाउ लास्ट वन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, एर्गॉन एंड हीलियम आर सम ऑफ द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मतलब वो आपको रेड कलर का बहुत ही पतला पोर्शन दिख रहा है, मतलब कि बाकी का जो बचता है ना 0.01% जितना, तो वो कितना होता है? वो बाकी के अदर गैसेस है। कौन से गैसेस है? बाकी के अदर गैसेस होते हैं, जिससे ये अलग अलग गैसेस होते हैं। अलग अलग गैसेस में कहते हैं, तो वाटर वेपर भी उसमें आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, एर्गॉन भी आ गया और हीलियम भी आ गया। उसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस हैं जो उसमें इंक्लूडेड है। मेन सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन, मतलब 78%। फिर उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, मतलब कि 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 0.03%, और बाकी का जो बचता है वो किसका है? अदर गैसेस का। किसका है? किस? अदर गैसेस का। क्लियर? नाउ चलो लेट्स रीड इट वंस अगेन, लिसन केयरफुली। कार्बन डाइऑक्साइड, about 0.03% of the air is carbon dioxide. It is used by green plants to make their own food by the process of photosynthesis. Now oxygen, about 21% of air is oxygen. Living things need oxygen to breathe. It is required for burning as well. मतलब कि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब कोई भी चीज जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम घर पे जो स्टोव है, स्टोव को नेचुरल फूड को कुक करने के लिए वी नीड टू बर्न समथिंग, राइट? ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जो इजीली हो रहा है, बर्न हो रहा है कुछ भी, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस वजह से कोई भी चीज इजीली बर्न हो रही है। क्लियर? नाइट्रोजन, about 78% of the air is nitrogen। मतलब कि 78% कितना है एयर के प्रपोर्शन में? नाइट्रोजन। It is important for the growth of plants. Water vapor, hydrogen, argon and helium are some of the other gases present in the air. Clear, kids? Now next topic, properties of air. There are different properties of air are there. Air has the following properties. Number 1, it occupies space. एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। I'll give you बेस्ट एग्जांपल। किड्स, आप एक बलून लीजिए, बलून को ब्लो करिए, तो बलून के अंदर बट नेचुरल एयर गई ना, तो बलून बड़ा हुआ, मतलब एयर इज ऑक्यूपाई स्पेस। वो उसकी स्पेस मतलब कोई भी चीज है, एयर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। हम कोई भी रूम में रहते हैं तो जो रूम में जितनी स्पेस होती है उसमें वो अपनी स्पेस तो बना ही लेता है, उसको इजीली अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है। क्लियर? अब अभी ऐसे करो ना, एयर आपको फील भी होगी, दिखेगी, इट इज नॉट विजिबल टू बट इजीली वी कैन फील इट। क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इट एक्सर्ट्स प्रेशर। मतलब वो प्रेशर भी करती है। बलून में आप एयर को ब्लो करते जाओ, बहुत करोगे तो वो फट जाएगी। मतलब उसका प्रेशर भी होता है। क्या होता है?
उसका प्रेशर भी होता है। आप साइकिल में कोई भी टायर है उसमें आप एयर को फील कराओगे तो वो फील हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, भरते जाओगे तो टायर है वो फट जाएगा, मतलब एयर का प्रेशर भी होता है। नाउ थर्ड, इट हैज वेट, मतलब एयर के पास अपना वेट भी होता है। क्या होता है, एयर के पास अपना वेट भी होता है। वो एक एक्सपेरिमेंट याद है किड्स कि एक स्टिक लेनी है, दो बलून्स को ब्लो करना है, एक को दोनों को बैलेंस करके बीच में कर देना है, फिर क्या करना है, एक को फोड़ देना है, तो ये बाजू वाला होगा वो बलून नीचा बैठ जाएगा, मतलब नीचा चला जाएगा, मतलब कि एयर के पास वेट है। आई विल गिव यू एग्जांपल। ये एक स्टिक लेके यहाँ पे एक हैंग कर देना है, ओके। यहाँ पे दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया किड्स, यहाँ पे अपने दोनों बलून्स को फिल कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, राइट। हमने ये बलून्स को लगा दिया, फिर क्या करना है किड्स, ये दोनों बैलेंस है, फिर एक को फोड़ देना है। क्या कर देना है, फोड़ देना है। तो बट नेचुरल है, उसके अंदर से एयर चली जाएगी, तो एयर चली जाएगी तो क्या होगा बाद में, ये हो गया फटा हुआ, और ये जो है वो ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये फटा है और यहाँ पे एक तरफ वेट बढ़ जाएगा, मतलब ये वाली स्टिक है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मतलब एयर के पास अपनी वेट है। इफ यू आर गाइस फ्री प्लीज डू इट प्रैक्टिकली, ये आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। एक स्टिक लेनी है, दो बलून्स को हैंग करना है, दोनों को बैलेंस में बीच में सही रखना है, फिर देखना कि बैलेंस बिल्कुल अच्छी तरह से होगा, फिर एक को फोड़ देना है। जो फोड़ दोगे आप लोग तो एक बाजू कैसा हो जाएगा, स्टिक ऐसे डाउन हो जाएगी, उस वजह से पता चलेगा कि एयर के पास अपना इट हैज इट्स ओन वेट, ये उसके पास अपना वेट भी है। क्लियर? यू कैन सी एयर ऑक्यूपाइंग स्पेस व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून। ये हमें इजीली कब पता चलता है, जब भी हम बलून में एयर फील करते हैं, राइट, तभी हमें पता चल जाए कि एयर को कि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, राइट। As you blow air into the balloon expands. जैसे जैसे हम एयर बलून में एयर फील करते हैं तो बलून धीरे धीरे एक्सपांड होने लगता है, मतलब कि बड़ा होने लगता है, राइट। Proving that air occupies space. इससे क्या प्रूव होता है कि एयर के पास अपनी खुद की स्पेस है। I hope so you understand three properties of air. Clear? So let's read these points again. Air has the following properties. Number 1, it occupies space. Number 2, it exerts pressure. Number 3, it has weight. Clear? You can see air occupying space when you blow air into a balloon. As you blow air into the balloon expands, proving that air occupies. So kids, what we have learned in today's session, I explained about air, composition of air and properties of air. मतलब air में क्या है कि air is a mixture of many gases, मतलब कि air के अंदर एक ही air होती है, मतलब कि उसके अंदर एक गैस नहीं होता, there are so many different kinds of gases are there. Which type of gases are there? मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, argon, helium, and even water vapor and dust particles are also present in air. Clear kids? Now composition of air में मैंने क्या explain किया, तो कि मैंने आपको एक सर्कल दिखाया था ना, उसमें डिफरेंट कलर्स थे, कोई भी सर्कल में था जिसका बहुत ही ज्यादा प्रपोर्शन था, किसी का मीडियम था, किसी का बहुत ही कम था, राइट। मतलब जो सबसे ज्यादा 78% किसका है, नाइट्रोजन का है, राइट, वो ग्रीन कलर में था। सबसे ज्यादा कौन सा प्रपोर्शन है, नाइट्रोजन। तो व्हाट इज द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रपोर्शन है 78%। कितना प्रपोर्शन है किड्स, 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना प्रपोर्शन है हमारी एयर में, तो कि 21%। कितना किड्स, 21%। as we all know
the oxygen is more important for living things, otherwise we cannot live. मतलब हमारे लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन का प्रपोर्शन बहुत ही जरूरी है. ऑक्सीजन कम होगा तो हम लिविंग थिंग्स तो बहुत ज्यादा है, तो वी नीड मोर ऑक्सीजन, राइट. तो 21% अभी तो हमारे लिए फुलफिल्ड है, 21% हमें नीड है. बाकी का ऑक्सीजन जो होता है वो क्या है, प्लांट्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, राइट किड्स. फिर उसके बाद में आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%. कितना परसेंट किड्स, 0.03. About 0.03% of the air is carbon dioxide. 0.03 है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. It is important to make food by the process of photosynthesis for plants. मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है. नाउ बाकी का सारा वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, एर्गोन, वो कितने 0.01% में ही ये सब कुछ, बाकी का जो होता है वो ये सारे गैसेस होते हैं. क्लियर किड्स. फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. आई एक्सप्लेन यू 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. नंबर 1, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. Number 2, it exerts pressure, and number 3, it has weight. Clear kids? So here we completed today's session, right? In next, मतलब कि in third session, I am going to explain about atmosphere. मैं आपको क्या explain करूँगी, atmosphere. आपको पता है कि atmosphere में layers भी होते हैं, जैसे कि troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the layers of atmosphere. क्या है? These are the layers of atmosphere which is surrounded by our earth. Earth के आजू बाजू में है. फिर मैं आपको क्या explain करूँगी, importance of atmosphere. क्या explain करूँगी, importance of atmosphere. तो ये यहाँ पे हमारे सेशन 2 खत्म. सेशन 3 में ये explain करूँगी. ओके किड्स, I have shared a PDF with you. मैंने आपको PDF शेयर किए, उसमें डूएस डिरेक्टेड है. इसी जो मैंने ये 3 टॉपिक लिए हैं उसी में से ही क्वेश्चन. इफ यू वॉच माय वीडियो केयरफुली यू नो आंसर्स वेरी वेल बाय योर ओन सेल्फ. यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक अदर्स हेल्प, ओके, एंड डू इट गुड हैंडराइटिंग, ताकि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आए. क्लियर किड्स. सो डू इट बाय योर ओन सेल्फ. अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आया, ओपन योर बुक, रीड द चैप्टर ट्वाइस टाइम. जो जो टॉपिक्स मैंने समझाया है वो ओपन कर दो, आप वो रीड करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके किड्स. सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.